Hello everyone, warm welcome to my channel Priyanka Edu Advisor, and I am Priyanka Chauhan. Today we will study class 8th science chapter 2nd microorganisms friend and foe. You have seen several kinds of plants and animals. आपने बहुत तरह के plants और animals देखे होंगे अपने आसपास, but do you know that there are some other living organisms? हमारे आसपास कुछ और भी तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, जो हम अपनी आईज से देख नहीं सकते, और वो इतने ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं अर्थ पे, मतलब मोर देन एनी प्लांट और एनिमल्स, इनसे भी ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं. दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स. But we cannot see them with the naked eyes. We can only see them with the help of microscope, and they are present everywhere. Everywhere means they are present in the soil, present in the air, present in the water, present in plants, in animals, or even in the body of the human beings or on the body of the human beings. These microorganisms are present everywhere. That means they are cosmopolitan. ये हर जगह present होते हैं. For example, you might have observed that during rainy season moist bread gets spoiled and its surface gets covered with the greyish white patches. All of you must have observed this कि जब bread ख़राब हो जाती है rainy season में especially, उसके ऊपर greyish black whitish patches आ जाते हैं. What is that? When you will see it with a magnifying glass, you will see tiny black rounded structures. Magnifying glass से जब हम देखेंगे तो हम उसे बड़े बड़े ब्लैक कलर के स्ट्रक्चर्स देखेंगे. व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर्स? दिस इज़ फंजाई. एंड फ्रॉम वेयर डज इट कम फ्रॉम? दीज आर द फंगल स्पोर्स. दे आर प्रेजेंट इन एयर. ये एयर में प्रेजेंट होते हैं, और जब भी इन्हें कोई सूटेबल सबस्ट्रेटम मिलता है ग्रो करने के लिए, तो वहाँ पे गा के ग्रो हो जाते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. Activity 2.1. In this activity you have to collect some soil particles. थोड़ा soil particles collect करना है, उसमें थोड़ा सा water mix करना है and keep it aside. थोड़ी देर में soil particles नीचे settle हो जाएंगे. जो water remaining होगा उसको आपको microscope के नीचे observe करना है. One more activity, take a few drops of pond water, और उस pond water की drop लेके put it on the slide, glass slide. ग्लास की स्लाइड होती है रेक्टेंगुलर शेप की, उसके ऊपर हम 1 ड्रॉप वाटर डाल देते हैं, उसे माइक्रोस्कोप के नीचे प्लेस करते हैं और फिर उसे ऑब्जर्व करते हैं. एंड व्हाट it will surprise you when you will observe this 1 drop of water. You will see so many microorganisms in a single drop of water. These observations show that water and soil, they are full of tiny organisms, though not all of them fall into the category of the microbes. These microorganisms or microbes are so small in size that they cannot be seen with unaided eyes. हमें इतने small होते हैं कि हम इन्हें अपनी eyes से नहीं देख सकते. We need microscope to see them. Some of these, such as fungus that grow on bread, can be seen with a magnifying glass. Others cannot be seen with the help of a microscope. That is why others cannot be seen without the help of microscope. That is why these are called microorganisms or microbes. Microorganisms are classified into 4 major groups. 4 major groups में इन्हें classify करते हैं. These are bacteria, fungi, protozoa and algae. Some of these common microorganisms are shown in figures 2.1 and 2.4. This is the figure of bacteria. This is spiral bacteria. ये स्पाइरल शेप का बैक्टीरिया, इस तरह की स्पाइरल शेप होती है. ये रॉड शेप बैक्टीरिया, इस तरह की रॉड शेप होती है इसकी बैक्टीरिया की. नेक्स्ट इज द एल्गी. दिस एल्गी इज क्लेमाइडोमोनास एंड दिस इज स्पाइरोगायरा. नेक्स्ट इज द प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ फर्स्ट एग्जाम्पल इज अमीबा. अमीबा हैज़ नो शेप. ये अपनी शेप चेंज कर लेता है. एंड दीज आर द सूडोपोडिया ऑफ अमीबा. नेक्स्ट इज द पैरामीशियम. पैरामीशियम इज़ ऑफ स्लिपर शेप. जो हम स्लिपर पहनते हैं उसकी शेप किया होता है पैरामीशियम. इट इज़ कॉल्ड स्लिपर एनिमल क्यूल, इसलिए इसका ये नेम होता है. नेक्स्ट आर द फंजाई. ब्रेड मोल्ड. इस तरह से ये नीचे इसके स्टॉक्स होते हैं, और स्टॉक्स पे इस तरह के ये स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं. ये स्पोर्स एयर में प्रेजेंट होते हैं और ये कहीं पे भी जाके ग्रो कर सकते हैं फिर.
this is Penicillium, and this is Aspergillus. So you have to learn all the examples of bacteria, algae, protozoa and fungi. These are the 4 groups of microorganisms. Now next are the viruses. What are viruses? They are also microscopic. ये भी बहुत tiny structures होते हैं, बहुत छोटे होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते. They however reproduce only inside the cells of the host organism. अब वायरस क्या होता है? ये नॉन लिविंग के भी फीचर्स शो करते हैं और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के भी फीचर्स शो करते हैं. दैट मीन्स दे आर ऑन द बॉर्डर लाइन बिटवीन द लिविंग एंड द नॉन लिविंग वर्ल्ड. ये बिल्कुल बॉर्डर पे होते हैं. ये अपने आप रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि इनकी खुद की बॉडी नहीं ये खुद रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं क्योंकि, और ये तभी रिप्रोड्यूस कर पाएंगे जब ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एंटर करेंगे, जिसे हम बोलेंगे होस्ट ऑर्गेनिज्म. किसी होस्ट में एंटर करेंगे, प्लांट या एनिमल, उसकी बॉडी को यूज़ करेंगे और रिप्रोड्यूस करके और वायरसेस बनाएंगे. विच मे बी बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल. या तो बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर वायरस मल्टीप्लाई करेगा या प्लांट या एनिमल. सम ऑफ द कॉमन वायरसेस आर कॉमन कोल्ड, जैसे कॉमन कोल्ड जो सबको होता है, फ्लू, इन्फ्लुएंजा, ये सब वायरस से होते हैं. एंड मोस्ट कफ्स आर कॉज्ड बाय द वायरसेस. सम सीरियस डिजीजेस लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स, ये भी वायरस से होते हैं. These are the viral diseases. Now next example of protozoan diseases are dysentery and malaria. And some examples of bacterial diseases are typhoid and tuberculosis. Now next topic is where do microorganisms live? This we have discussed. Microorganisms are present everywhere. Microorganisms, they may be single celled भी हो सकते हैं. बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ, और मल्टी सेलुलर मीन्स बॉडी में बहुत सारे सेल्स भी हो सकते हैं, सच एज एल्गी एंड फंजाई. दे कैन सर्वाइव अंडर ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट. ये हर तरह के एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं. वेदर इट इज़ अ आइस कोल्ड टेम्परेचर, वेदर इट इज़ अ हॉट स्प्रिंग, ये जो झरने होते हैं, गर्म पानी के जो झरने होते हैं. डेजर्ट्स टू मार्शी लैंड्स. मार्शी मीन्स जो दलदल वाला एरिया होता है, जहाँ दलदल होता है, और डेजर्ट जहाँ पे सैंड ड्यून्स होते हैं, हाई टेम्परेचर रहता है, वो डेजर्ट एरिया हो गया. तो कोई भी एरिया हो, हर जगह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं. दे आर ऑल्सो फाउंड इन साइड द बॉडीज ऑफ द एनिमल्स इंक्लूडिंग द ह्यूमन्स. एनिमल्स की बॉडीज़ के अंदर और ह्यूमन बींग्स की बॉडी के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स. दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे भी ग्रो करते हैं ये. सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स वाइल अदर्स एग्जिस्ट फ्रीली. और कुछ फ्रीली बाहर अलग से भी एयर, वाटर, सॉइल में रहते हैं, और कुछ दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर रहते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा कैन लिव अलोन. अमीबा अलग से अलोन रहता है, वाटर में मिलता है अमीबा. वाइल फंजाई एंड बैक्टीरिया मे लिव इन कॉलोनीज. मीन्स अमीबा अकेला ही रहता है जैसे वाटर में है, बट कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कॉलोनी में रहना पसंद करते हैं. कॉलोनी मीन्स बहुत सारे एक साथ मिल के रहते हैं, जैसे बहुत सारी फंगस एक साथ प्रेजेंट होगी एक ही जगह पे. बैक्टीरिया बहुत सारे एक साथ होंगे. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. ये हमारे लिए बेनिफिशियल भी है और हार्मफुल भी है. इनके हमारे लिए यूज़फुल भी हैं और हमारे लिए बहुत नुकसान भी करते हैं, और हमारी बॉडी में बहुत डिजीज़ेस भी करते हैं. हेल्पफुल कैसे हैं? पहले हम पढ़ेंगे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत तरह से यूज़ होते हैं. सबसे पहले कर्ड, ब्रेड, केक. कर्ड तो आप लोग डेली खाते हो, वो कैसे बनता है? वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से बनता है. ब्रेड आप लोग खाते हो, केक आप लोग खाते हो, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से ही बनते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है इनको बनाने में. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल. एल्कोहल में भी इनका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ही यूज़ होता है. दे आर ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग अप द एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट को भी क्लीन करते हैं. कैसे क्लीन करते हैं? अगर कोई एनिमल या प्लांट डेड हो जाएगा, तो एनिमल की बॉडी, अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे नहीं होंगे तो उसकी बॉडी डिकम्पोज नहीं हो सकती और वो वापस सॉइल में मिक्स नहीं हो सकती. अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अर्थ पे नहीं होते तो हमारी अर्थ पे डेड बॉडीज़ का ढेर लग जाता, क्योंकि बहुत सारे लोगों की डेथ होती है, प्लांट, एनिमल्स, और वो वापस सॉइल में मिक्स नहीं हो पाते. तो हर जगह डेड बॉडीज़ हो जाती है और हर जगह स्मेल हो जाती है. तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दे प्ले अ वेरी
very important role in. So microorganisms are useful to us in this way. They are also used in cleaning up of the environment. For example, organic waste, vegetable peels, remains of animals, feces, etc. They are broken down into harmless and the usable substances by bacteria. तो बैक्टीरिया इनको वापस यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये वापस सॉइल में चले जाते हैं एंड दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स which are used by the plants in their growth as we studied in the chapter 1. Now recall that the bacteria are also used in the preparation of medicines. Medicines में भी bacteria use होते हैं, agriculture में भी use होते हैं. They increase the soil fertility by nitrogen fixation. This also we have studied in chapter 1. Example of Rhizobium bacterium, it increases the soil fertility by fixing atmospheric nitrogen. It lives in the root nodules of the leguminous plants. Now next is the making of the curd and bread. Curd or bread. Now here the Paheli is saying, I saw that my mother added a little curd to warm milk to set curd for the next day. I wonder why. आई थिंक ये आप सब ने ऑब्ज़र्व किया होगा घर पे आपकी मदर जब कर्ड बनाती हैं वो नाइट में मिल्क को वार्म करके उसमें थोड़ा सा कर्ड डाल देती हैं और नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक वो कर्ड बन जाता है. दैट मीन्स द मिल्क गेट्स कन्वर्टेड इनटू कर्ड. बट हाउ दिस हैपन्स and who helps in setting of curd? Yes, again the important role is of microorganism and that bacteria is Lactobacillus bacteria. Curd contains several microorganisms and of these the bacterium Lactobacillus, it promotes the formation of the curd. जब ये वार्म मिल्क में लैक्टोबैसिलस थोड़ा सा कर्ड डाल देते हैं तो वो पूरी नाइट मल्टीप्लाई करता है वो बैक्टीरिया. वो उस थोड़े से कर्ड में भी मिलियंस ऑफ लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं जो मिल्क में डाला जाता है और वो मल्टीप्लिकेशन से सुबह तक बहुत सारे बैक्टीरिया बन जाते हैं और उसको कर्ड बना देते हैं मिल्क को एंड कन्वर्ट्स द मिल्क इनटू कर्ड. बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व्ड इन द मेकिंग ऑफ चीज़ भी बनता है बैक्टीरिया. इस जो प्रोसेस होता है इसमें बैक्टीरिया का इन्वॉल्वमेंट होता है. पिकल्स मीन्स अचार एंड मैनी इंपॉर्टेंट फूड आइटम्स. एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ इडलीज एंड भटूराज इज कर्ड, क्योंकि इसमें कर्ड यूज़ होता है और कर्ड से फिर आगे प्रिपरेशन में इसका इम्पॉर्टेंट रोल होता है. नाउ द नेक्स्ट एक्टिविटी, टेक हाफ kg आटा एंड ऐड सम शुगर एंड मिक्स विद वार्म वाटर. अब उसे थोड़ी देर रख दीजिए. एड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट पाउडर उसमें ऐड करके उसे अच्छे से आटे को गूंदना टू नीड एंड मेक अ सॉफ्ट डो. नाउ व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आफ्टर 2 आवर्स के लिए उसे कवर करके रख दीजिए. यू विल सी दिस. इस तरह से हमने बनाया था और ये मैदा जो होगा ये रेज हो जाएगा, ये फूल जाएगा. नाउ व्हाई दिस हैपन्स, बिकॉज यहाँ पे ईस्ट ग्रो करी, ईस्ट ने मल्टीप्लाई किया, रेस्पिरेशन किया और रेस्पिरेशन करने से यहाँ पे गैस प्रोड्यूस हुई कार्बन डाइऑक्साइड. तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होने से बबल्स आ गए यहाँ पे गैसेस के और ये डो राइज हो गया. द ईस्ट प्रोड्यूसेस रैपिडली, बहुत रैपिडली प्रोड्यूस करते हैं. जो बैक्टीरियाज और ये ईस्ट होते हैं ये विद इन कुछ मिनट्स में 10 मिनट्स 20 मिनट्स में ही डबल हो जाते हैं अपने अमाउंट के. तो इनका रिप्रोडक्शन रेट बहुत हाई होता है. ईस्ट रिप्रोड्यूसेस रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. बबल्स ऑफ द गैस फिल द डो एंड इंक्रीजेज इट्स वॉल्यूम. इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है और ये राइज हो जाता है, एकदम से फ्लफी सा हो जाता है. दिस इज द बेसिस ऑफ द यूज ऑफ ईस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड्स, पेस्ट्रीज एंड केक्स. वहाँ पे हमें ये ईस्ट ही यूज़ होती है for making all these things. Now next is the commercial use of the microorganisms. Commercial use में alcohol, large scale alcohol production, wine production and acetic acid means vinegar. इनको बनाने में ईस्ट का इम्पॉर्टेंट रोल होता है. अल्कोहल और वाइन बनाने में ईस्ट यूज़ की जाती है. ये नेचुरल शुगर्स पे ग्रो करती है जैसे कि वीट, बार्ले, राइस या क्रश्ड फ्रूट के जूसेस. जैसे ग्रेप्स का जो जूस होता है उसको फर्मेंटेशन के लिए छोड़ दिया जाता है बहुत बहुत टाइम तक और वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है. जो वाइन्स बनती हैं, फ्रूट जूसेस, इन सब से बनती हैं ये बार्ले, वीट, राइस. तो ये इनमें ईस्ट का इम्पॉर्टेंट रोल होता है.
Now next activity, in this you have to take 500 ml of the beaker, 3/4 वाटर से फिल करना है, 2-3 स्पून्स उसमें शुगर ऐड करनी है एंड ऐड हाफ स्पून ऑफ थोड़ा सा ईस्ट पाउडर डालना है. अब ईस्ट उसमें मल्टीप्लाई करने लगेगी. इसको थोड़ी वार्म प्लेस पे रखना होता है फॉर 4 to 5 आवर्स और उसको स्मेल करना. आप उसको स्मेल करोगे आपको उसमें अल्कोहल जैसी स्मेल आएगी. दिस इज़ द स्मेल ऑफ द अल्कोहल एज शुगर हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट. ईस्ट शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देती है एंड दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन. सबसे पहले लुइस पैस्चर ने डिस्कवर किया था फर्मेंटेशन इन द ईयर 1857. Now what are the medicinal uses of the microorganisms? Whenever you fall ill, तो डॉक्टर आपको कुछ टैबलेट्स देते हैं या इंजेक्शंस देते हैं, पेनिसिलिन की कैप्सूल्स. ऑल दीज आर द लाइक एंटीबायोटिक्स. तो एंटीबायोटिक्स किससे बनी हुई होती हैं? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म. द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. और इसकी जो डिस्कवरी हुई थी वो बड़ी एक्सीडेंटल डिस्कवरी हुई थी. Like when the scientist Alexander Fleming, he was working in the laboratory, वो कुछ बैक्टीरिया का कल्चर कर रहे थे लैब में. तो सडनली व्हाट ही फाउंड कि कल्चर प्लेट्स में बैक्टीरियल कॉलोनीज़ जो ग्रो हो रही थी, बैक्टीरियल कॉलोनीज़ के साथ साथ में उन्होंने कुछ और ग्रीन कलर के पैचेस भी देखे. यहाँ पे ग्रीन कलर के पैचेस देखे बैक्टीरिया के मोल्ड में. बैक्टीरिया जहाँ पे कॉलोनीज़ ग्रो हो रही थी तो उन बैक्टीरियल कॉलोनीज़ के पास में कुछ और ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स उन्हें दिखाई दिए. उन्होंने जब उसको और ऑब्ज़र्व किया तो ही फाउंड कि जहाँ पे बैक्टीरिया के पास में मोल्ड ग्रो हो रही थी वो मोल्ड उस बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने दे रही थी, उस बैक्टीरिया को किल कर रही थी, आसपास के बैक्टीरियाज को. और ये मोल्ड जो है ये किसको बोल रहे हैं? ये फंजाई को बोल रहे हैं. दिस मोल्ड इज़ फंगस पेनिसिलिन. तो इस तरह से पेनिसिलिन की डिस्कवरी हुई थी. तो फिर पेनिसिलिन्स को बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज़ करते हैं. तो पेनिसिलिन से फिर एंटीबायोटिक्स बनाई गई. और एंटीबायोटिक्स से क्या होता है, जैसे भी कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर किया, उसने डिजीज़ करी, तो उस बैक्टीरिया को किल करने के लिए पेनिसिलिन टैबलेट दी जाती है जिससे वो उस बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक दे और बैक्टीरिया को मार दे बॉडी के अंदर. तो सम ऑफ द antibiotics which are used are streptomycin, tetracycline and erythromycin. These are the examples of the antibiotics. Commonly known antibiotics which are made from the fungus and the bacteria. The antibiotics are manufactured by growing some specific microorganisms and they are used to cure a variety of diseases को ठीक करने में यूज़ किए जाते हैं. एंटीबायोटिक्स को एनिमल्स को भी दिया जाता है, लाइफ स्टॉक एंड पोल्ट्री में भी उनको दिया जाता है. उनको खाने के साथ मिक्स कर दी जाती है क्योंकि माइक्रोबियल डिजीज़ेस तो एनिमल्स में भी होती हैं, तो उनको उनके खाने में मिक्स करके एंटीबायोटिक्स दे दी जाती हैं. प्लांट्स में भी कुछ डिजीज़ेस होती हैं बैक्टीरिया से के कारण, जो बैक्टीरियल डिजीज़ होती है उनको कंट्रोल करने के लिए प्लांट्स में भी यूज़ की जाती है. एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट इट शुड बी एंटीबायोटिक शुड be taken only on the advice of the qualified doctor. और एंटीबायोटिक की जो प्रॉपर डोज जो डॉक्टर बोलते हैं वो हमें प्रॉपरली लेनी चाहिए. बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी चाहिए क्योंकि एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को किल करती है और हमारी बॉडी के अंदर, हमारी इंटेस्टाइन के अंदर बहुत यूज़फुल बैक्टीरियाज भी रहते हैं जो हमारी इंटेस्टाइन्स के लिए ज़रूरी होते हैं, हमारे फूड डाइजेशन के लिए ज़रूरी होते हैं क्योंकि वो विटामिन बी बनाते हैं हमारी इंटेस्टाइन्स में. अगर हम बहुत लंबे टाइम तक एंटीबायोटिक्स लेते रहेंगे तो वो हमारी इंटेस्टाइनल फ्लोरा है जो माइक्रोब्स का, इंटेस्टाइनल फ्लोरा को डिस्ट्रॉय कर देगा. तो इस तरह से बहुत लंबे टाइम तक नहीं लेनी चाहिए. अब एंटीबायोटिक्स जब हमें कोल्ड होता है या फ्लू होता है तो उस टाइम एंटीबायोटिक्स कोई इम्पॉर्टेंट मतलब काम नहीं करती है, इफ़ेक्टिव नहीं होती है क्योंकि जो वायरस और जो इन्फ्लुएंज़ा होता है ये जो डिजीज़ेज़ होती हैं ये वायरस से होती है. तो वायरस पे एंटीबायोटिक्स इम्पॉर्टेंट रोल प्ले नहीं कर पाती, वो वायरस को मार नहीं पाती, वो सिर्फ बैक्टीरिया को ही किल कर पाती हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ द वैक्सीन. नाउ व्हाई आर चिल्ड्रन इन्फेंट्स गिवन वैक्सीनेशन. आप लोग सब छोटे थे तो आप सबको वैक्सीन दिया गया था. क्यों दिया गया था? जैसे पर्टिकुलर कोई भी डिजीज़ है, suppose we are talking about any disease, पोलियो की ड्रॉप्स दी जाती है बच्चों को, तो वो एक तरह का वो भी वैक्सीन है. वो इंजेक्शन नहीं है, वो ओरल ड्रॉप की फॉर्म में वैक्सीन दिया जाता है जिससे कि बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन सकें, बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन जाएं और फर्दर
बॉडी को प्रोटेक्ट कर सके, वायरस बॉडी में एंटर होगा और अगर हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगी तो वो उस पोलियो वायरस को किल करके डिजीज़ होने नहीं देंगी। तो यही वैक्सीन का रोल होता है, इसलिए वैक्सीन्स दिए जाते हैं। व्हेन अ डिजीज़ कैरिंग माइक्रोब एंटर्स अ बॉडी, द बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज़। जैसे आपकी बॉडी में कोई वायरस एंटर करता है तो उस वायरस के अगेंस्ट हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो जाती हैं और फिर वो एंटीबॉडीज़ उस वायरस के अगेंस्ट फाइट करती हैं और वो वायरस जब भी बॉडी में एंटर करता है तो उसको डिस्ट्रॉय करती हैं। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स, बॉडी एक तरह से एंटीबॉडीज़ की मेमोरी होती है, वो रिमेंबर करती है कि कौन सा वायरस था, उसके अगेंस्ट कौन सी एंटीबॉडी काम करेगी। अगर वो दोबारा भी बॉडी में एंटर करता है और वो एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं तो वो उस वायरस को, बैक्टीरिया को पहचान लेती हैं और वो उसको किल कर देती हैं। तो नाउ व्हाट इज़ वैक्सीन? अगर किसी भी माइक्रोब का डेड या वीकेंड फॉर्म, जैसे हमें पोलियो का ही जैसे वैक्सीन देना है तो पोलियो का जो वैक्सीन होगा उसमें पोलियो वायरस का ही डेड या वीकेंड फॉर्म होगा जो डिजीज़ तो नहीं कर सकता। बॉडी में अगर उसे एंटर कराएंगे तो वो डिजीज़ नहीं कर सकता, पर वो क्या करेगा, एंटी बॉडी की प्रोडक्शन में हेल्प कर देगा, बॉडी में एंटीबॉडीज़ बना देगा पोलियो वायरस के अगेंस्ट, जिससे कि बाद में अगर पोलियो वायरस एंटर करता है बॉडी में, किसी की भी बॉडी में, तो वो एंटीबॉडीज़ जो अंदर प्रेजेंट है, उनकी मेमोरी है, वो पहचान लेंगी कि ये पोलियो वायरस है और वो पोलियो वायरस को डिस्ट्रॉय कर देंगे और डिजीज़ नहीं होने देंगी पोलियो। सो ये प्रिंसिपल होता है वैक्सीन का। सो इफ़ डेड और वीकेंड माइक्रोब आर इंट्रोड्यूस्ड इन अ हेल्दी बॉडी, the body fights and kills them by producing suitable antibodies. The antibodies remain in the body and we are protected from the disease called the disease causing microorganisms. This is how a vaccine work. अब बहुत सारी diseases के vaccines दिए जाते हैं like cholera, tuberculosis, smallpox, hepatitis. They can be prevented by the vaccination. और vaccination सबसे पहले vaccine discovered किया था, you have to learn all these names. Edward Jenner discovered the vaccine for the smallpox in 1798. In your childhood you must have got the injections for several diseases. तो वो आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करने के लिए था और वो डिजीज़ेस आपको नहीं हुई क्योंकि आपकी बॉडी में उनकी एंटीबॉडीज़ थी, और अगर इनफैक्ट कभी भी वो उसके वायरस या बैक्टीरिया एंटर हुए तो एंटीबॉडीज़ ने उनको किल कर दिया और डिजीज़ को नहीं होने दिया। इट इज़ एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दीज डिजीज़ेस बिकॉज दीज आर वेरी लाइक डिजीज़ेस जो इवन डेथ भी हो जाती है इनसे। चिल्ड्रन के लिए पोलियो के लिए पल्स पोलियो प्रोग्राम चलाया गया है गवर्नमेंट के थ्रू, जिसमें पोलियो ड्रॉप्स दी जाती हैं। इट इज़ अ वैक्सीन, इट्स अ वर्ल्ड वाइड कैंपेन। जैसे स्मॉल पॉक्स के लिए हुआ था पहले, जिससे पूरा स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट हो गया, मतलब पूरा ख़त्म हो गया फ्रॉम मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। These days vaccines are made on a large scale from microorganisms to protect humans and other animals from several diseases. Now the next topic is increasing the soil fertility में भी help करते हैं bacteria. Some bacteria and blue-green algae, they are able to fix nitrogen from the atmosphere to enrich soil with nitrogen and increase its fertility, and these microbes are called बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। कुछ बैक्टीरिया होते हैं, जैसे हमने एग्जाम्पल पढ़ा था राइजोबियम बैक्टीरियम, वो लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में रहता है, रूट में नोड्यूल्स में रहता है और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेके उसको नाइट्रेट्स में सम यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है और फिर वो प्लांट को प्रोवाइड कराता है, प्लांट उसको यूज़ कर लेता है। प्लांट डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन गैस यूज़ नहीं कर सकते, उनको एक सॉल्युबल फॉर्म में ही नाइट्रोजन चाहिए होता है जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कन्वर्ट करके देते हैं। ऐसे ही ब्लू ग्रीन एल्गी भी करती है, सॉइल में नाइट्रोजन को फिक्स करती है और फिर प्लांट्स इसको यूज़ करते हैं, इसलिए इन ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू ग्रीन एल्गी, फिगर 2.7, ये ब्लू ग्रीन एल्गी है। क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, ये हमने पहले भी पढ़ा है कि वेजिटेबल्स और वेस्ट, फ्रूट वेस्ट, इन सबको जैसे एक पिट बना के उसमें सबको डाल के वेस्ट डिस्पोज कर दिया जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है थोड़े टाइम तक,
तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, मैन्योर में कन्वर्ट हो जाती है। बूझो एंड पहेली वांटेड टू नो हाउ दिस कुड हैपन, ये कैसे होता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण ही होता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें ग्रो करते हैं, उसको डीकम्पोज करते हैं, उसको तोड़ देते हैं छोटे छोटे सिंपल न्यूट्रिएंट्स में और सॉइल में कन्वर्ट कर देते हैं, सॉइल में मिक्स कर देते हैं उसे। इसमें एक्टिविटी दे रखी है, 2 पॉट लेने हैं, दोनों में हाफ हाफ सॉइल ऐड करना है। एक पॉट में तो प्लांट वेस्ट और ये सब डालना है जिससे माइक्रोब्स उसे कन्वर्ट कर देगा मैन्योर में, और दूसरे पॉट में आप डालोगे प्लास्टिक टॉयज, एम्प्टी ग्लास बॉटल्स, पॉलीथीन बैग्स। तो दोनों किस में डिकम्पोजिशन होगा, पॉट ए में और पॉट बी में। यस, पॉट ए में डिकम्पोजिशन होगा क्योंकि माइक्रोब्स जो हैं वो प्लांट वेस्ट पे एक्ट करेंगे। पॉलीथीन और इन सब पे माइक्रोब्स एक्ट नहीं कर सकते, तो इनका डिकम्पोजिशन नहीं होगा। अगर आप सॉइल में एक पॉलीथीन छोड़ देंगे और उसको सॉइल में नीचे दबा के छोड़ देंगे और आप उसको 200 ईयर्स के बाद भी देखेंगे तो वो सॉइल में से वैसी की वैसी ही वो पॉलीथीन निकलेगी, प्लास्टिक वैसा का वैसा ही निकलेगा सॉइल में से। वो 200 ईयर्स, वो कितने भी साल उसको छोड़ दो, वो फिर भी डिकम्पोज नहीं होता क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उन पे एक्ट नहीं कर सकते और उसको डिकम्पोज नहीं कर सकते। The microbes, they do not act on these plastic bags and broken toys, and they cannot convert them into manure. So you often see large amount of dead organic matter in the form of decaying plants, animals. इन सब पे भी microbes act करते हैं और ये microorganisms decompose कर देते हैं. These substances are again used by the plants and animals use करते हैं. Thus microorganisms can be used to degrade the harmful and smelly substances and thereby clean up the environment. Now the next topic is the harmful microorganisms. Microorganisms are harmful in many ways. Some of the microorganisms cause diseases in the human beings, plants and animals, and such disease causing microorganisms are called pathogens. Disease causing microorganisms are called pathogens जो disease करते हैं. Some microorganisms spoil food, clothing and leather. ये food को भी spoil करते हैं, clothes को भी ख़राब कर सकते हैं, leather को भी ख़राब कर सकते हैं. डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमंस. अब ह्यूमंस में किस तरह से डिजीज़ करते हैं. पैथोजन मीन्स जो डिजीज़ कर रहा है जो माइक्रोब, वो बॉडी में एंटर करेगा, और वो कैसे एंटर हो सकता है, वो एयर के थ्रू भी एंटर हो सकता है, वाटर के थ्रू भी बॉडी में जा सकता है, जो वाटर या फूड जो हम खा रहे हैं उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर सकता है. दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन. अगर किसी पर्सन को ऑलरेडी इन्फेक्शन है तो उससे भी दूसरे पर्सन में वो इन्फेक्ट हो सकता है, या किसी एनिमल में वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, उसको कोई डिजीज़ है, तो वो एनिमल के थ्रू भी किसी दूसरे पर्सन में स्प्रेड हो सकती है. अब वो एयर, वाटर एंड फूड. Microbial diseases that can spread from an infected person to a healthy person through air, water, food or physical contact. They are called communicable diseases. Communicable diseases इस तरह से spread होती हैं. Air, water, food and physical contact. Examples are cholera, common cold, chickenpox and tuberculosis. Suppose we talk about influenza या common cold. अगर किसी को common cold हुआ है और उस पर्सन ने sneeze किया या उस पर्सन ने छींका, तो उस पर्सन के छींकने से इतने सारे वायरस एयर में हो जाते हैं, और उसके आसपास जो लोग होते हैं जब वो उस एयर को ब्रीथ करेंगे अंदर, तो वो वायरस एयर के थ्रू नोज़ से होते हुए बॉडी में अंदर चले जाएंगे. इसी तरह अगर आप जो पानी पी रहे हैं, दैट वाटर इज़ नॉट फिल्टर्ड, उसमें कई बैक्टीरिया प्रेजेंट हो सकते हैं, प्रोटोजोअन्स हो सकते हैं. तो अगर आपने वो वाटर को ड्रिंक किया तो उसके साथ में वो आपकी बॉडी के अंदर चला गया और वो अंदर जाके बैक्टीरिया फिर डिजीज़ करेगा. फूड आपने खा लिया, आपने ऐसा फूड खा लिया, पुराना फूड खा लिया जिसमें स्मेल आ रही थी या जो बाहर पड़ा हुआ था बहुत दिनों तक, उसके अंदर बैक्टीरिया ग्रो होते हैं. अगर आपने वो खाना खा लिया तो आपकी बॉडी में वो एंटर कर जाएगा. या फिज़िकल कांटेक्ट, जैसे किसी को कोल्ड हुआ हुआ है, उसने अपनी नोज़ पे या ऐसे टच किया तो वो वायरस हाथों पे लगे रहते हैं. उसने वहाँ पे किसी और पर्सन को जाके टच किया, किसी और चीज़ को टच किया, तो वो वायरस वहाँ पे ट्रांसमिट हो जाता है, बैक्टीरिया आगे ट्रांसमिट हो जाता है. तो इस तरह से दीज आर द कम्युनिकेबल डिजीजेज विच स्प्रेड फ्रॉम one person to another person through air, water, food and physical contact. Now when a person suffering from common cold sneezes, fine droplets of moisture carrying thousands of viruses, they spread in the air
and virus may enter the body of a healthy person while breathing. Then how do you prevent the spread of communicable diseases? How can we stop spreading of disease? So we should keep a handkerchief on the nose and mouth while sneezing, and it is better to keep a distance from the infected persons. Always keep a handkerchief and maintain a distance with the infected persons to prevent the infection. There are some diseases which are caused by the insects and animals which act as a carrier of the diseases and carriers of the microbes. For example, housefly sits on the garbage and waste. Then what the housefly does, it flies and sit on the garbage and animal excreta. फिर उससे जो पैथोजेंस होते हैं वेस्ट पे वो सारे उसकी बॉडी पे स्टिक हो जाते हैं और फिर फ्लाई जाके किसी फूड पे जाके बैठ जाती है और वो वहाँ पे जाके सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो पैथोजेंस है उनको वहाँ पे रिलीज़ कर देती है। और अगर कोई उस खाने को कंटामिनेटेड फूड को खा लेता है जिसमें माइक्रोब्स होते हैं उसको कंटामिनेटेड फूड बोल रहे हैं, अगर उस कंटामिनेटेड फूड को खा लेते हैं तो वो पर्सन बीमार हो जाएगा। सो इट इज़ एडवाइजेबल ऑलवेज टू कवर द फूड. अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम्स ऑफ फूड. वन मोर कैरियर इज एनोफिलीज मॉस्किटो विच कॉजेज मलेरिया. अब मलेरिया किससे होता है? एनोफिलीज मॉस्किटो के अंदर एक पैरासाइट होता है, पैरासाइट इज प्लाज्मोडियम. प्लाज्मोडियम मलेरिया करता है, बट उसको कैरी कौन करता है, किसकी बॉडी में होता है? वो एनोफिलीज, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो की बॉडी में होता है. तो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो इज द कैरियर ऑफ दिस फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, कैरियर ऑफ पैरासाइट ऑफ मलेरिया. Then one more example, you have to learn these examples. Female Aedes mosquito, it acts as the carrier of the dengue virus. Dengue disease is caused by a virus, पर वायरस किसकी बॉडी में प्रेजेंट होता है? फीमेल एडीज मॉस्किटो की बॉडी में. ऑल द मॉस्किटोज ब्रीड इन वाटर एंड वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट होने नहीं देना चाहिए घर के आसपास या कूलर में, टायर्स में, फ्लावर पॉट्स में, क्योंकि स्टैंडिंग वाटर में मॉस्किटोज ब्रीड करते हैं और मॉस्किटोज हो जाते हैं. So by keeping the surroundings clean and dry, we can prevent mosquitoes from breeding. Now there is a table given here, some common human diseases which are caused by the microorganisms. Human diseases like tuberculosis, measles, chickenpox, polio. Learn these causative organisms. Tuberculosis is caused by bacteria and mode of transmission is air. Measles, viral disease. Chickenpox also caused by virus. Polio, the question can come like name two viral diseases, so you have to name these diseases, chickenpox and polio. Name any two bacterial diseases, cholera, typhoid. Or what is the causative organism of cholera? So the answer would be bacteria. What is the causative organism of hepatitis B? Virus. Malaria, protozoa. So preventive measures are given here. Now the disease causing microorganisms. Several microorganisms not only cause diseases in humans and plants but also in other animals. Animals के अंदर, plants में, humans में, सब पे diseases करते हैं microorganism. For example, anthrax is a dangerous human and cattle disease. Anthrax disease, और ये किससे होती है? Bacterium. Learn this. Foot and mouth disease of the cattle is caused by a virus. Robert Koch discovered the bacterium Bacillus anthracis which causes anthrax disease. Disease causing microorganisms in plants. Microorganisms जो हैं वो plants में भी diseases करते हैं, like wheat, rice, potato, sugarcane, orange, apple and others. The diseases reduce the crop yield. Crop की जो प्रोडक्शन है, जो लास्ट में फार्मर को हार्वेस्टिंग के टाइम पे जो मिलती है क्रॉप, वो कम हो जाती है क्योंकि डिजीज़ से प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं. सो इट अफेक्ट्स द यील्ड ऑफ द क्रॉप. दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूज़ ऑफ सर्टेन केमिकल्स विच किल द माइक्रोब्स. को किल करने के लिए फिर केमिकल स्प्रे किए जाते हैं. प्लांट की डिजीज़ के नेम्स क्या हैं? सिट्रस कैंकर बैक्टीरिया से होता है. रस्ट ऑफ व्हीट कॉज्ड बाय फंजाई. Yellow vein mosaic of bhindi okra. Learn all these names and the microorganism which causes these disease. Now the next topic is food poisoning. Now in this it is given कि बूझो को उसके फ्रेंड ने इनवाइट किया था फॉर द पार्टी. वहाँ पे बहुत सारा फूड था. वहाँ से बूझो पार्टी से आया तो उसको घर पे आके वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई और फिर उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा. एंड डॉक्टर टोल्ड कि बूझो को फूड पॉइजनिंग हुई है.
Now the Paheli is confused that how can food become a poison? Yes, the food poisoning can happen because due to consumption of the spoiled food. अगर ख़राब खाना खा लिया जाता है, वो बहुत पुराना हो जाता है, पड़ा हुआ खाना, so माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करना स्टार्ट हो जाते हैं कुछ आवर्स के बाद, तो वो फूड ख़राब होने लग जाता है. अब वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जब वो खाएंगे तो फूड के साथ बॉडी के अंदर एंटर करते हैं और वो कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं, टॉक्सिन्स. तो टॉक्सिन्स मीन्स पॉइजनस सब्सटेंसेस. तो पॉइजनस सब्सटेंसेस बॉडी में जाके फिर फूड पॉइजनिंग करते हैं और सीवियर फूड पॉइजनिंग कैन इवन लीड टू डेथ. उससे डेथ भी हो सकती है. तो इससे प्रिवेंट करना चाहिए, फूड को प्रॉपरली प्रिजर्व करना चाहिए और ख़राब खाना खाने से बचना चाहिए. फूड प्रिजर्वेशन, फूड को हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, क्या क्या मेथड्स है फूड को प्रिजर्व करने के लिए. फूड को हम लो टेम्परेचर पे प्रिजर्व कर सकते हैं, जैसे हम फ्रिज में प्रिजर्व करते हैं. और भी बहुत सारे मेथड्स हैं. जैसे आपने देखा है कि ब्रेड को आप लोगों ने ऑब्जर्व किया ही है कि ब्रेड को बाहर छोड़ दें मॉइस्ट कंडीशन में, उससे फंगस लग जाती है. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड को स्पॉइल कर देते हैं. स्पॉइल्ड फूड हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कैसे, या तो उसमें बैड स्मेल आने लग जाती है, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, बैड टेस्ट हो जाता है और उसका कलर भी चेंज हो जाता है. तो इज स्पॉइलिंग ऑफ फूड अ केमिकल रिएक्शन? यस, इट्स अ केमिकल रिएक्शन. पहेली बॉट सम मैंगोज बट शी कुड नॉट ईट देम फॉर अ फ्यू डेज. बाद में जब उसने उसको खाया तो मैंगोज ख़राब हो चुके थे. फिर शी वॉज कन्फ्यूज कि जब उसकी ग्रैंड मदर पिकल बनाती है, मैंगो का रॉ मैंगो का अचार बनता है, वो तो बहुत टाइम तक ख़राब नहीं होता, वो तो प्रिजर्व करके रख सकते हैं हम पूरा साल भर अचार को, तो वो ख़राब नहीं होता. पर मैंगोज़ कैसे ख़राब हो गए? नाउ दिस हियर इज़ द आंसर. क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स डलते हैं. एक तरह से ऑयल ख़राब नहीं होने देता अचार को, उसमें सॉल्ट डला हुआ होता है, सॉल्ट से अचार ख़राब नहीं होता है. Now the next is the chemical method. Salts and edible oils are the common chemicals generally used to check the growth of microorganisms. ये microorganisms को grow नहीं होने देते. Salt और edible oil, जो खाने वाला जो oil होता है, जो हम अचार में डालते हैं, जैसे mustard oil हो गया, they act as the preservatives. ये preservative की तरह act करते हैं. We add salt or acid preservatives to the pickles to prevent the attack of microbes. और क्या ऐड करते हैं? सोडियम बेंजोएट, ये प्रिजर्वेटिव्स हैं, केमिकल प्रिजर्वेटिव. सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, नेम्स लर्न करने इनके. दीज आर द कॉमन प्रिजर्वेटिव्स एंड these are also used in the jams and squashes to check their spoilage. नेक्स्ट इज़ द प्रिजर्वेशन बाय द कॉमन सॉल्ट. ये आप सबने देखा है कि कॉमन सॉल्ट जब हम मिक्स कर देते हैं, जैसे अचार में सॉल्ट डाल देते हैं, या बहुत सारी चीज़ें हम रॉ फॉर्म में भी प्रिजर्व करके रखते हैं. आंवला, रॉ मैंगोज़, जो कच्चा आम होता है, या टैमरिंड, इमली, इनके ऊपर सॉल्ट लगा के रख देते हैं, तो इससे ये ख़राब नहीं होती. या फिर मीट, फ़िश, ये भी सॉल्टिंग से प्रिजर्व की जाती हैं. प्रिजर्वेशन बाय शुगर. जैम्स, जेलीज एंड स्क्वैशेस आर प्रिजर्व बाय शुगर. शुगर से क्या होता है? मॉइस्चर कंटेंट रिड्यूस हो जाता है, और मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाता है क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बैक्टीरिया ग्रो किस पे करते हैं? फूड को उन्हें मॉइस्चर चाहिए, उन्हें वाटर चाहिए. जब वाटर कंटेंट ही नहीं मिलेगा उन्हें, तो वो ग्रो किस पे करेंगे? तो फिर वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, तो फूड स्पॉइल नहीं होगा. ऐसे ही जो सॉल्ट होता है, सॉल्ट भी जब हम किसी में ऐड कर देते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस पर ग्रो नहीं कर पाते. प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर. यूज़ ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स. पिकल में अगर ऑयल डाल दें या विनेगर, सिरका डाल दें, तो बैक्टीरिया ऐसे एनवायरनमेंट में रह नहीं पाता है और फिर वो चीज़ ख़राब नहीं होती. हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट. बॉइलिंग, जैसे आपके घर में मिल्क आता है, उसको पहले बॉईल किया जाता है, तो बॉईल करने से क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उससे ख़त्म हो जाते हैं. नाउ द नेक्स्ट टर्म इज़ पैस्चराइज्ड मिल्क. पैस्चराइज्ड मिल्क, आप जो डेयरी से मिल्क लेके आते हैं, जो पैकेट्स में आता है, जैसे सरस का मिल्क हो गया, या मदर डेयरी का, अमूल का जो मिल्क आता है, वो मिल्क जो पैकेट्स में आता है, जो डेयरी से आता है, वो पहले पैस्चराइज्ड होता है. पैस्चराइज्ड का मतलब पहले उसे हाई टेम्परेचर पे 70 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया जाता है, हाई टेम्परेचर पे, और फिर सडनली उसे 15 to 30 सेकेंड्स के लिए उसे हीट किया जाता है, और फिर एकदम से उसे कूल किया जाता है, एकदम से चिल्ड कर दिया जाता है, ठंडा कर दिया जाता है. तो इससे क्या होता है कि माइक्रोब्स की ग्रोथ रुक जाती है, ग्रोथ नहीं हो पाती, और वो मिल्क प्रिजर्व रहता है. पैस्चराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग. इसको हम विदाउट बॉइलिंग भी
कंज्यूम कर सकते हैं, पी सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले हाई टेम्परेचर पे ये बॉइल्ड होता है, फिर से कूल किया हुआ होता है डेयरी के अंदर। द मिल्क इज़ हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 seconds and then suddenly chilled and stored by prevents the growth of microbes, and this process was discovered by Louis Pasteur, so it is called pasteurization. लुइस पैश्चर ने डिस्कवर किया था, इसलिए इसको पैस्चराइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट इज़ द स्टोरेज एंड पैकेजिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ड्राई फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आजकल एयर टाइट पैकेट्स में सील करके फिर मार्केट में आते हैं, क्योंकि सीलिंग में क्या होता है, वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, अंदर एयर नहीं होती, और एयर नहीं होती तो फिर वो माइक्रोब्स अटैक नहीं कर पाते। नेक्स्ट इज़ नाइट्रोजन फिक्सेशन। Now you have learnt about the bacterium rhizobium in class 6th and 7th. It is involved in the fixation of nitrogen in the leguminous plants. जो leguminous plants होते हैं pulses, उनकी roots के अंदर कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि राइजोबियम। वो रूट नोड्यूल्स के अंदर रहते हैं। इन प्लांट्स की रूट्स में जैसे इस तरह के रूट्स में इस तरह के नोड्यूल्स बना लेते हैं। ये जैसे राउंड स्ट्रक्चर्स, छोटी छोटी बॉल्स होती हैं, ऐसे इन नोड्यूल्स के अंदर ये रहते हैं, और ये यहाँ पे रह के नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन लेते हैं और उसे सॉल्युबल नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं, फिर वो नाइट्रेट्स प्लांट यूज़ कर लेते हैं। और नाइट्रोजन राइजोबियम बैक्टीरियम को क्या मिलता है प्लांट से, फूड मिलता है और रहने की जगह शेल्टर मिलता है। तो ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन हो गई। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में दोनों पार्टनर्स एक दूसरे को म्यूचुअली बेनिफिट करते हैं, दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो दिस टाइप ऑफ रिलेशन है सिम्बायोटिक रिलेशन। समटाइम्स नाइट्रोजन गेट्स फिक्स्ड थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग जब बिजली चमकती है उस टाइम पे भी नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। But you know that the amount of nitrogen in the atmosphere remains constant. You may wonder how. Let us understand this in the next section. Now we will study the nitrogen cycle. हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है, and it is one of the essential constituents of the living organisms. क्योंकि प्रोटीन, नाइट्रोजन मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है प्रोटीन का। प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन चाहिए होता है। क्लोरोफिल, प्लांट्स में जो क्लोरोफिल उसमें नाइट्रोजन चाहिए। न्यूक्लिक एसिड्स, हमारी बॉडी में जो आरएनए डीएनए होता है, हमारा डीएनए, उसमें प्रोटीन चाहिए होता है। विटामिन्स को बनने में प्रोटीन चाहिए होता है। तो प्रोटीन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय द प्लांट्स। एनिमल्स डायरेक्टली नहीं ले सकते, तो कुछ सर्टेन बैक्टीरिया जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी है और नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, ये इसको फिक्स करते हैं एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में। वंस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू दीज यूजेबल कंपाउंड्स, इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट्स सॉइल फ्रॉम द सॉइल थ्रू द रूट सिस्टम। नाइट्रोजन इज देन यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन्स। फिर वो प्लांट उस नाइट्रोजन को किस में यूज़ करता है, प्लांट अपने प्रोटीन्स बनाता है और दूसरे कंपाउंड्स बनाता है। फिर जब एनिमल कोई उस प्लांट को खाएगा तो वो जो प्रोटीन्स हैं और जो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स हैं वो एनिमल की बॉडी में चले जाएंगे। और फिर एनिमल और बैक्टीरिया, जब एनिमल या प्लांट किसी की डेथ होगी तो उस पर बैक्टीरिया और फंगस एक्ट करेंगे और वापस से उसकी बॉडी में जो नाइट्रोजन और नाइट्रोजनस कंपाउंड्स है उसको डीकम्पोज करके सॉइल में पहुंचा देंगे। वापस से कन्वर्ट कर दिया उसको, नाइट्रोजन सॉइल में चला गया और नाइट्रोजन गैस जो है वो वापस एटमॉस्फेयर में चली गई है और दूसरे न्यूट्रिएंट सॉइल में चले जाते हैं। तो एज अ रिजल्ट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स मोर और लेस कांस्टेंट ही रहती है। देखिए यहाँ से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, इन्होंने नाइट्रोजन कंपाउंड्स में फिक्स किया। ये कंपाउंड सॉइल में आ गए। कंपाउंड्स फिर सॉइल से किसने ले लिया, प्लांट्स ने ले लिया। फिर प्लांट्स से एनिमल्स में, एनिमल्स ने खाया तो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स एनिमल्स में आ गए। फिर एनिमल्स और इनका नाइट्रोजनस वेस्ट जो रिलीज़ हुआ या उनकी डेथ के बाद ये वापस से कंपाउंड्स डिकम्पोज करके सॉइल में आ गए। फिर बैक्टीरिया टर्न्स कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैशियस नाइट्रोजन और ये वापस गैशियस नाइट्रोजन ऑक्सीजन में एटमॉस्फेयर में चली गई। तो इस तरह से नाइट्रोजन साइकिल चलती रहती है और नाइट्रोजन का अमाउंट जो है वो सेम रहता है एटमॉस्फेयर में। Now these are the keywords. Algae, it is one of the group of microorganisms, antibiotics, antibodies, bacteria, carrier, communicable diseases. I hope all these terms are clear to you.
These are the key points of the chapter. So now the chapter is complete. I hope the video is useful to you. So please like the video, share it with others so that maximum number of students may get benefited. And don't forget to subscribe the video. And if you have already subscribed, then please press the bell button so that whenever I upload the video you get the notification. And if you are new to the channel, please subscribe the video and press the bell button. Till the next video, bye bye and thank you so much.